Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will discuss all the official questions of the Snap Slot 1. जो भी जितने भी questions हमारे Slot 1 में आए हैं, I have covered around 20 questions in this video. So and these are the official questions. Obviously this is a memory based question, but I think this is the good to go and these are the exact questions only. So 8 दिसंबर की शिफ्ट में जो 2 to 3 PM की फर्स्ट शिफ्ट थी, राइट, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं we will solve all the questions in this video. Before going directly to the questions, I would request everyone to follow us on Instagram and also join our Telegram group discussion where we regularly post a lot of content, a lot of free guidance, and a lot of updates around what we are covering next. So ये भी update मैंने वहाँ पे डाल दिया था कि today I will be releasing video and this video will help you a lot for the slot 2 and slot 3, especially अगर आप slot 2 slot 3 में appear करने वाले हो तो देर इज ए हाई चांस कि आपको है ना सिमिलर क्वेश्चन वहां पे देखने को मिले, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो हमारा पैटर्न यही होगा, फर्स्ट यू हैव टू पॉज द वीडियो, पॉज करके आपको सोल्व करना है एंड सोल्व करके फिर आपको यू हैव टू वॉच द सॉल्यूशन, राइट. आई जस्ट वांट योर सपोर्ट फ्रॉम दिस थिंग कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो सो दैट ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स कैन गेट हेल्प आउट ऑफ दिस वीडियो, राइट. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. क्या बोल रहा है देखो. ए टीम ऑफ A team of three players is to be selected randomly from two persons of France, three persons of Croatia, and four persons of Netherlands. In how many ways can we select three players such that at least one person is from Croatia? Right. So I have two people from France, three people from Croatia, and four people from Netherlands. And मुझे कितने लोग select करने हैं? I have to select three out of these 9 people. राइट. एंड वहां पे हमें कंडीशन दी हुई है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट थ्री प्लेयर्स सच दैट एटलीस्ट वन पर्सन इज फ्रॉम क्रोशिया, राइट. तो टोटल वेज में से मैं माइनस नन फ्रॉम क्रोशिया कर दूंगा तो व्हाट आई विल गेट एटलीस्ट वन फ्रॉम क्रोशिया, है ना. टोटल में से माइनस नन फ्रॉम क्रोशिया, टोटल वेज मेरे कितने हो जाएंगे 9C3, राइट. टोटल मेरे 9C3. अगर मैं कोई भी प्लेयर क्रोशिया से सिलेक्ट नहीं कर रहा तब मेरे वेज कितने होंगे 6C3. सो दैट इज माई आंसर. दैट इज 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2. सो यहाँ से यह कैंसिल, 3 से 3 4. सो 4 3 12 7 84 माइनस 20 है 64 should be my answer. 64 is the correct answer. Understood. Now let's move to the next question. This is the next question. Please first try it on your own, है ना. And these are the exact questions, ditto questions या आपके slot 1 में थे, right. So please try this question. राइट. सो लेट्स से हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 1000 माइनस 1/x की पावर 1000, राइट. सो देखो स्नैप इज अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, राइट. इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी इन एनी क्वेश्चन, राइट. सो व्हाट हैपेंस जनरली इज, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे, राइट, x प्लस 1/x -2 के इक्वल कब होगा, राइट. यू डोंट नीड टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट ऑब्जर्व करो. इट विल बी एट x इज इक्वल टू -1. when you substitute x is equal to -1, -1 is equal to -2, right. now -1 आप यहाँ पे substitute करो, -1 power 1000 is 1, -1 by -1 power 1000 is 1, that is 1 minus 1 is equal to 0, hence 0 is your correct answer. 0 is your correct answer. Understood. Now let's go to the next question. Solve this question. क्या बोल रहे देखो, A and B can complete a work in 24 days. B can complete the same work alone in 32 days. If both work together for 8 days, then B left, then the remaining work was completed by A alone in how many days? So basically ऐसे questions में how do we start? We start by taking the total work. Total work को assume कर सकते हैं, राइट. आप कितना भी एज्यूम कर लो, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ इजीनेस मैं टोटल वर्क को 96 एज्यूम करता हूँ. सो ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 days. दैट मीन्स ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी 4,
है ना, 96/24। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन इन 32 डेज, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 96/32, दैट इज 3। तो ए की एफिशिएंसी यहां से मेरी कितनी आ गई, 1। राइट। इफ बोथ वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, अगर दोनों 8 डेज के लिए वर्क करेंगे सो कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 8 × 4 32। सो लेफ्ट ओवर वर्क इज 64 यूनिट्स। राइट, देन द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय ए अलोन इन, तो ये वर्क ए कितने दिन में करेगा, 64 बाय एफिशिएंसी ऑफ ए, दैट इज 64 डेज। सो ए विल टेक 64 डेज टू कंप्लीट द वर्क, hence C is the answer. Right, C is your answer. Now let's move to the next question. Read out the question first, try it on your own. Now then let's solve the question. क्या बोल रहा है देखो, pause the video and try it on your own first. How many four-letter words with or without meaning can be formed using the letters from the word cross section such that one letter is repeated thrice? है ना, how many four letters words can be formed using the letters from the word cross section? अब cross section में देखो, CROSS कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। क्रॉस सी आ गया मेरा 2 टाइम्स, देन टी, देन आई, ओ मेरा कितने टाइम आया है, 2 टाइम्स, देन एन। राइट, तो मेरे टोटल वर्ड्स कितने हुए, 2 + 3 5 8 9 10 11 12। सो 12 टोटल वर्ड्स है मेरे पास, है ना, टोटल वर्ड्स आर 12। राइट, सच दैट वन लेटर इज रिपीटेड थ्राइस। राइट, तो ऐसा 3 वाला कौन सा लेटर हो सकता है ना, 3 वाला कौन सा लेटर हो सकता है, सिर्फ एस 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 हो सकता है। एस 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 के अलावा तो कोई ऐसा नहीं हो सकता जो 3 टाइम रिपीटेड हो। और मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है, 1 2 3 4। राइट, यहां से एस एस एस, ये तो 3 तो ऐसा आ जाएंगे इसमें, और एक मुझे कोई और सिलेक्ट करना है। राइट, आई हैव टू सिलेक्ट वन मोर। देखो एस 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 आ गया, एस एस एस, एक यहाँ पे एक लेटर और सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 में से कोई भी एक लेटर यहाँ पे आ जाएगा, कितने वेज आएंगे, 7C1 दैट इज 7। राइट, तो मेरे 7 तो वेज आ गए, है ना। प्लस अब मुझे लेट से यहाँ पे कोई भी एक लेटर आया, इनको अरेंज करने के कितने वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दैट इज 7 × 4, दैट इज 28। So hence 28 should be the right answer. 28 should be the right answer for this question. Understood, everyone? Now let's solve this question. Sum of x, y and z is 850. Okay. X plus y plus z is equal to 850. If x is reduced by 100, y is reduced by 25 and z is reduced by 50, the new ratios of this are xy and yz are 1 2 and 5:6 respectively. You have to find the value of x plus y. ठीक है, अब बेसिकली क्या बोल रहा है, लेट से यहाँ पे मैंने x को रिड्यूस किया 100 से, y को 25 से एंड z को 50 से, तो मेरा टोटल रिडक्शन हो गया 100 150 175 का। सो ये वैल्यू मेरी कितनी बन जाएगी, 675। राइट, अब दिस इज न्यू x न्यू y न्यू z। अब न्यू x और न्यू y का रेशियो क्या है, 1:2। न्यू x और न्यू y का, और न्यू y और न्यू z का रेशियो क्या है, 5:6। राइट, सो क्या मैं कह सकता हूं ये तीनों वैल्यू का रेशियो क्या होगा, लेट से यहाँ पे मैं 10 को टारगेट करता हूं, तो इफ आई एम टेकिंग दिस एज 10, दिस विल बिकम 12, और ये मेरा हो जाएगा 5। सो 5 10 12 के रेशियो में ये डिजिट्स आएंगी। राइट, सो आई कैन से 5a plus 10a plus 12a is equal to 675. That means 27a is equal to 675. सो यहां से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। राइट, ए की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 25। राइट, ए इज 25। फिर क्या बोला, फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 25 × 5 125, यहाँ पे 25 × 10 250। यहाँ पे देखो x मेरा रिड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पे इनिशियल x क्या होगा, इंक्रीज होगा 100 से, तो इनिशियल x वाज 225।
और y मेरा कितने से रिड्यूस हो रहा था 25 से, सो न्यू y मेरा कितना इनिशियल y कितना आ जाएगा 250 प्लस 25 दैट इज 275। सो मुझे फाइंड करना है इन दोनों का समेशन, दैट इज 225 प्लस 275 दैट इज इक्वल टू 500, that is equal to 500. So 500 should be my correct answer, right? 500 should be my correct answer, right? थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी हो सकता है एग्जाम में, है ना, बट आई वुड से दिस वाज अगेन ऑन द डूएबल साइड ओनली, है ना, कुड हैव बीन अ लिटिल लेंदियर, राइट? फाइन, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Please solve this question on your own first, then we will discuss this question. I hope the question is visible. है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था. रूट एक्स पूछा था, काफी लोगों ने एक्स भी लगाया और थोड़ा थोड़ा गलती किया, बट इन द एग्जाम रूट एक्स वाज आस्क्ड. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स सी. इफ log 10x, log 10x माइनस log 10. अब देखो रूट एक्स को आई कैन राइट एक्स की पावर हाफ, या फिर मैं डायरेक्ट हाफ लिख सकता हूं यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 log x 10, राइट? सो यहाँ पे log 10x minus half log 10x will become half log 10x is equal to 2 log x की 10, right? So now what I can do, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ half into log of x divided by log of 10 is equal to twice of log of 10 divided by log of x, right? So I can say log of x by log of 10, है ना, का होल स्क्वायर is equal to 4, or I can say log of x divided by log of 10 is equal to 2, right? और यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, log of x is equal to twice of log of 10, और x is equal to 100, क्योंकि ये पावर यहाँ पे चली जाएगी तो स्क्वायर हो जाएगा. देन आई कैन कंपेयर x एंड 100, और काफी लोग यहाँ पे 100 एज ए आंसर मार्क करके आए हैं, है ना, 100 एज एन आंसर मार्क करके आए हैं. बट आपको पूछा था रूट एक्स की वैल्यू, सो रूट एक्स इज रूट 100, रूट एक्स इज रूट 100, सो 10 शुड बी द राइट आंसर, 10 शुड बी द राइट आंसर. These are the ditto questions, these are the ditto questions taken from the slot 1. If you like the video, please share it with your friends and also do comment. प्लीज सोल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन फर्स्ट. बेसिकली ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैट से उठाया हुआ क्वेश्चन है. कैट के टाइम ऐसे क्वेश्चंस को हम काफी प्रैक्टिस करते हैं, और एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. एग्जाम में अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, देन इट वुड हैव बीन अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, अदरवाइज काफी सिंपल क्वेश्चन था. देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, टू सर्कल्स, देखो क्या बोल रहे हैं, टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, ईच ऑफ दीज टू सर्कल इज टच एक्सटर्नली बाय थर्ड सर्कल. इफ दीज थ्री सर्कल्स हैव ए कॉमन टेंजेंट देन द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल. फर्स्ट थिंग इज, देखो ऐसे डायग्राम कुछ था नहीं इसमें, राइट? तो डायग्राम पहले देख लेते हैं कि कैसे बनता है ऐसे क्वेश्चंस का. क्या बोले, टू सर्कल टच एक्सटर्नली, ईच ऑफ दीज टू सर्कल्स इज टच एक्सटर्नली बाय अ थर्ड सर्कल इफ दीज थ्री सर्कल्स हैव ए कॉमन टेंजेंट. सो बेसिकली इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है. लेट्स से दो मेरे जो सर्कल्स उसने बोले हुए हैं इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, वो मेरे कुछ ऐसे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली,
लेट्स से दिस इज द टच पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड सर्कल उनको ऐसे टच कर रहा है, तो उनकी कॉमन टेंजेंट ये वाली होगी, है ना। दिस लाइन इज टेंजेंट टू दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, और इसकी आपको रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है, राइट। इसके काफी मेथड्स हैं, देखो लेट्स से वो यहाँ पे टच कर रहा है, तो आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन से तो ऑब्वियसली यू कैन डू सम थिंग्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ये लाइन को ऐसे पास करूंगा, तो दिस इज 6, दिस इज स्मॉल आर, तो इनको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा एंड देन या, तो यहाँ पे ये 90 बन गया, दिस इज 90, दिस इज 6 प्लस आर, एंड दिस लाइन जो मेरी ये लाइन है, जो सिर्फ इतनी सी लाइन है, ये कंप्लीट लाइन मेरी 6 है, तो ये लाइन हो गई 6 माइनस आर। सो यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा के यू कैन एनी डे फाइंड द रेडियस, राइट। आर की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? 1/√r इज इक्वल टू 1/√r प्लस 1/√r, राइट। मतलब 1/√r इज दिस स्मॉल सर्कल की रेडियस इज इक्वल टू 1/√r, कैपिटल आर मतलब बिगर सर्कल की रेडियस, और फिर ये वाले बिगर सर्कल की रेडियस। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1/√r, और हमें कैपिटल आर दिया हुआ है 6, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, 1/√r इज 2/√6, राइट। सो रूट आर की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, √6/2। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ आई टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, 6/4, दैट इज 1.5। सो 1.5 मेरा डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ सकता था, बट अगेन दिस क्वेश्चन इज अ लिटल लेंथियर, बिकॉज यहाँ पे अगर किसी को नहीं पता कि हाउ यू शुड प्रोसीड विद द क्वेश्चन, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस हो सकती है। प्लस यहाँ पे नन ऑफ दीज काफी ऑप्शन होते हैं, राइट। इन द एग्जाम्स लाइक स्नैप, वहां पे जहां पे स्पीड बेस्ड एग्जाम है, वहां पे नन ऑफ दीज काफी ऑप्शंस होते हैं, राइट। एनओटी इज बेसिकली नन ऑफ दीज, राइट। सो वहां पे काफी दिक्कत आ जाती है बच्चों को, राइट। सो अगर यहाँ पे आपको नहीं पता इन दीज टाइप ऑफ एग्जाम्स, it is always suggested to leave such questions and to invest your time somewhere else. Chalo ji. Now let's see this question. What the question is trying to say. The two roots of an equation, this are in the ratio this, then find the all roots of the equation. है ना। आपको टू रूट्स तो ऑलरेडी कितने रेशियो में दे रखे हैं, 2 and 3 में, राइट। तो मतलब लेट्स से वन रूट इज 2a, the other root must be 3a. You don't know anything about the third root, right? Can we exclude some or remove some options जहां पे 2:3 कहीं भी नहीं बन रहा? देखो, अगर 2:3 है तो एक वैल्यू का मैं 3/2 करूंगा, तो आई शुड हैव गेट द अनदर वैल्यू। यहाँ पे मैं 1 का 3/2 करूंगा, तो आई एम नॉट गेटिंग 3/2 एनीवेयर एल्स। 2 का 3/2 करूंगा तो 3 भी नहीं है कहीं भी, और 4 का 3/2 करूंगा, देन आई एम नॉट गेटिंग 6, तो ये तो मेरा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं, 3/2 करूंगा तो 9 मेरा नहीं आएगा, 3/2 करूंगा तो 6 आ रहा है, मतलब ये मेरे 2a 3a हो गया, और एक थर्ड रूट मेरा ये हो गया अकॉर्डिंग टू द बी ऑप्शन। यहाँ पे देखो, 1 का 3/2 करूंगा तो मुझे कोई रूट नहीं मिल रहा, 3 का 3/2 करूंगा नहीं मिल रहा, 4 का 3/2 करूंगा 6 है, ये भी नहीं मिल रहा कहीं, तो दिस कांट बी द आंसर। -1 का 3/2 करूंगा तो कहीं नहीं मिल रहा, 3 का 3/2 करूंगा तो 9/2 इज नॉट देयर, 8 का 3/2 करूंगा तो 8 का 3/2 इज 12, वो भी कहीं नहीं है, सो डी भी नहीं हो सकता। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज बी, हेंस बी शुड बी द करेक्ट आंसर। आपको कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, जहां पे आपको दिमाग भी नहीं लगाना। आपको बोला है कि दो रूट्स हैं उसके 3:2 में है, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पे कोई ऐसे दो रूट्स हैं जो 3:2 में है, उसके अलावा कोई भी एक ऐसा रूट भी नहीं है जो 3:2 में है। अंडरस्टूड, है ना। इसके अलावा तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। यू कुड हैव डन द क्वेश्चन इन अदर वे, बट दिस इज अ स्पीड बेस्ड एग्जाम, तो आप पहले वही देखोगे कि आप कितने ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर ऐसा होता कि कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता, देन हम वही सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे खेलते और कुछ कुछ वहां पे चीजें करते। अंडरस्टूड। नाउ दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द, आई वुड से, क्लॉक्स पार्ट। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल भी क्वेश्चन था, है ना। और आप देखोगे हर क्वेश्चन में आपको नन ऑफ दीज भी बोला है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सोल्व this question first, pause the video and solve this question, and then let's discuss it together.
है ना। एक बार मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि इफ ए कुकू बर्ड क्लॉक, राइट, सो आपने देखा होगा, आई वुड से इन द ओल्ड वर्ल्ड एक क्लॉक होता था जहाँ पे एक अंदर से एक बर्ड या आई वुड से हैन एक बाहर आता था वेन एवर लेट से 6 p.m. एट 7 p.m. एट 8 p.m. एट एवरी ओ क्लॉक, राइट। सो यहाँ पे क्या बोला है, इफ ए कुकू बर्ड क्लॉक takes 10 seconds to chime at 6 p.m. how many seconds will it take to chime at 10 p.m. तो काफी लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, और एंड दिस क्वेश्चन आई वुड से आई कैन कैटेगराइज दिस क्वेश्चन एज ए रिडल, है ना। एक रिडल टाइप का क्वेश्चन था ये। तो बेसिकली उसको इसको रिडल टाइप में ही समझेंगे हम, इसको कैसे कर सकते थे आप, राइट। सो क्या बोल रहा है, इफ ए कुकू बर्ड क्लॉक टेक्स 10 seconds टू चाइम एट 6 p.m., राइट। 6 p.m. पे उसको कितने टाइम लग रहा है, 10 seconds। अंडरस्टूड। अब देखो कुकू में हमेशा क्या होता है ना, अब आपको जैसे लेट से देयर इज अ साउंड व्हेन इट्स 6 p.m. सो हाउ विल आइडेंटिफाई दैट इट्स 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m.? तो वो कुकू जो बर्ड होता है वो उतना टाइम अपना साउंड करता है, राइट। सो कुकू विल साउंड फॉर 6 टाइम्स। जब 6 p.m. हो जाएगा तो 6 टाइम होगा, और जब 10 p.m. होंगे, है ना, तो कुकू विल साउंड फॉर 10 टाइम्स, राइट। अब ये सिक्स सिक्स बार वो साउंड करेगा एट 6 p.m. इट टेक्स 10 सेकेंड फॉर कुकू टू साउंड फॉर 6 टाइम्स एट 6 p.m., राइट। पहला साउंड आया, फिर दूसरा साउंड आया, फिर तीसरा साउंड, फिर चौथा साउंड, फिर पांचवा साउंड, फिर सिक्स्थ साउंड, और इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगा, 10 seconds, राइट। लेट से पहला पहला साउंड कब आएगा, एग्जैक्टली एट 6 p.m. उसके बाद उसको यहाँ पे 6:10 हो गया, राइट। 6 p.m. 10 seconds, ठीक है, 10 seconds लग गए। तो इसके बीच में देखो ऐसा तो नहीं है लगातार होगा, देयर विल बी सम गैप, है ना, सम सेकंड्स ऑफ गैप, सम मिनी नैनो सेकंड्स ऑफ गैप। तो यहाँ पे लेट से देर इज ए गैप, देर इज ए गैप, देर इज ए गैप, देर इज ए गैप, देर इज ए गैप। कितना गैप हुआ, 1 2 3 4 5, 5 गैप्स हुआ। इसी की वजह से तो ये डिले हो रहा है 10 सेकंड्स। अगर कॉन्जिक्यूटिव होता देर वुड नॉट हैव बीन एनी डिले। तो ये 5 गैप्स की वजह से कितने का डिले आ रहा है, 10 सेकंड्स का। तो 1 गैप की वजह से कितने का डिले आएगा, 2 सेकंड का। तो हमें पता लग गया देर इज ए गैप ऑफ 2 सेकंड, है ना, देर इज ए गैप ऑफ 2 सेकंड, राइट। देर इज ए गैप ऑफ 2 सेकंड बिटवीन टू साउंड्स। अब 10 p.m. पे क्या होगा, देर विल बी 10 कुकुस, है ना, देर विल बी 10 साउंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 10 साउंड्स के बीच में गैप कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गैप्स। तो 9 गैप्स में कितना टाइम लगेगा, 9 into 2, दैट इज 18 seconds, है ना। इट विल टेक 18 seconds। सो 18 शुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, है ना। काफी एक नए टाइप का क्वेश्चन था, है ना, काफी नए टाइप का क्वेश्चन था। सो आई थिंक यू शुड हैव प्रोसीडेड विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर श्योर। अंडरस्टूड। बट हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कुकू बर्ड, सो यू कुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम, है ना। एग्जाम में आप देखोगे काफी इजी क्वेश्चंस भी हैं, काफी सीटर्स क्वेश्चंस भी आए थे। सो ऑलवेज इट इज बेटर टू फोकस ऑन द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन फर्स्ट, है ना। अगेन देखो ये वाला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन था, है ना, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना। माइट बी चैलेंजिंग फॉर ए लॉट ऑफ यू, बट माइट बी द इजीएस्ट वन फॉर ए लॉट ऑफ यू, बिकॉज करना कुछ भी नहीं था। जनरली होता क्या है ना, इफ यू इन्वेस्ट इन सम स्टॉक, है ना, जनरली इट इज टेकन की स्टॉक की वैल्यू जो फेस वैल्यू है ना, जो मेरी फेस वैल्यू होती है वो स्टॉक की, वो 100 होती है, right, and all the returns, for example if it's a stock of 5%, तो वो 5% किस पे कैलकुलेट होता है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। एंड प्रीमियम का मतलब क्या है कि उसकी फेस वैल्यू 100 है, बट मार्केट वैल्यू इज 15% अबव देन द प्रीमियम, ठीक है। अमित इन्वेस्ट 34,500 इन 5% स्टॉक। 5% स्टॉक मीन्स क्या, 5% स्टॉक का मतलब यही है कि जो उसका रिटर्न आएगा वो 5% आएगा, quoted at 15% premium, है ना। लेट्स टेक द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 100, बट नाउ इट इज एट प्रीमियम, तो उसकी प्रीमियम या मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 105। सो उसने 34,500 रुपीज इन्वेस्ट किए एट द रेट ऑफ 115 पर शेयर। तो उसको कितने शेयर मिल गए, 34,500 डिवाइडेड बाय 115, राइट, डिवाइडेड बाय 115, दिस इज 30,000।
right? So sorry, this is 3000. So he got 3000 shares. 3000 शेयर्स मिले एंड पर शेयर की वैल्यू कितनी आ गई 1000. पर शेयर की वैल्यू है हमारी 100. सो टोटल उसने कितने के शेयर्स लिए 30,000. 30,000 रुपीज के उसने शेयर लिए, बट जो 4500 एक्स्ट्रा दिया है वो किस वजह दिया है, बिकॉज द शेयर्स आर बीइंग ट्रेडेड एट 15% प्रीमियम. तो यू हैव टू फाइंड द एनुअल इनकम. एनुअल इनकम बेसिकली क्या होगी, है ना, 5% जो कोटेड है उसका, है ना वो. और बस आपको यही पता होना चाहिए कि वो 5% किसका है. काफी लोगों ने 34,500 का कर दिया होगा, दैट इज रॉन्ग. बिकॉज हमेशा 5% किस पे कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे. फेस वैल्यू आपकी 30,000 है. सो 30,000 का 500, सॉरी 5% विल बी 1500, है ना. 30,000 का 5% इज 1500. दैट्स वाई 1500 is a correct solution, correct answer to this question, right? Stoke का बिल्कुल छोटा सा concept है. If you want me to teach the concept of Stoke, I am very happy, I will be happy to teach that. Please comment down under this video and we will learn the complete concept related to the Stoke, because there is a chance that the same question or the same concept might get repeated in the next slots also, right? Pause the video and solve this question. क्या बोल रहा है ना, let's solve this question. A person covers, did we leave some question? No. A person covers a certain distance at a certain speed. If he increases his speed by 50%, then he takes 6 minutes less to cover the same distance. Find the actual time taken by him at the usual speed. है ना, आप इसको बहुत मेथड से कर सकते हो, है ना. देर आर इजी मेथड्स, देर आर टफ मेथड्स, बट यहाँ पे देखो स्पीड्स आपकी सेकंड्स में है ना, टाइम आपका सेकंड्स में है, तो आपको ये 6 मिनट्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहिए. तो दिस वुड बी 360 सेकंड्स, राइट. सो बेसिकली होता क्या है, let's say this is distance is equal to speed into time, and distance will be constant. So if you are increasing the speed by 3 by 2, basically 50% increase हो रहा है, तो this is 3 by 2. So to maintain this identity you have to multiply t by 2 by 3, ताकि 2 by 3 और 3 by 2 कैंसिल हो जाए, वो st का सेम आइडेंटिटी आ जाए, d is equal to st. सो यू आर हेयर ऑब्जर्विंग कि जब आप 50% से स्पीड इंक्रीज कर रहे हो तो आपका टाइम किससे डिक्रीज हो रहा है, 2/3 से, है ना. मतलब टाइम का डिक्रीज क्या हुआ, 1/3 ऑफ द टाइम गोट डिक्रीज, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टाइम का रिडक्शन हुआ है, राइट, है ना. 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टाइम का आपका रिडक्शन हुआ है. अंडरस्टूड. एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द ओरिजिनल टाइम. 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टाइम का रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन कितने मिनट्स का हुआ है, 6 मिनट्स का. सो यहां से आपका ओरिजिनल टाइम कितना आ जाएगा, ओरिजिनल टाइम कितना आ जाएगा, 6 into 3, दैट इज 18 मिनट्स, दैट इज 18 मिनट्स, राइट. सो 18 मिनट्स शुड बी द करेक्ट आंसर. आई थिंक दिस शुड बी द मिनट्स, मिनट्स एंड मिनट्स. सो सी शुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. अगर यहाँ पे सेकंड दिया होगा तो नन ऑफ दिस, अदरवाइज 18 मिनट्स शुड बी द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट. अगेन pause the video, solve this question on your own first. क्या बोल रहा है, Aman's income before he got an increment was 40% of the family's total income, right? Let's say family's income is 100x, this is the family income, and Aman income is 40% of this, that is 40x. He got an increment by 1/4 of his income. So अभी income कितनी हो गई, 1/4 का increment हुआ, that is 10x का increment. So new income is 50x. If there is no change in the income of the other members of the family, then what percent of his family's total income is his new salary, है ना. तो अब फैमिली की इनकम क्या हो गई, फैमिली इनकम, बाकी सबकी इनकम कांस्टेंट है, फैमिली की इनकम 10x से बढ़ जाएगी, बिकॉज अमन की इनकम 10x से इंक्रीज हो रही है, तो फैमिली की न्यू इनकम 110x आ जाएगी. पूछा क्या है, देन व्हाट परसेंट ऑफ हिज फैमिलीज टोटल इनकम इज हिज न्यू सैलरी, है ना. फैमिलीज टोटल इनकम इज हिज न्यू सैलरी. Cool. By 1/4, he got an increment by 1/4 of his income. I think this is 1/5. This is 1/5 of his income. So if this is 1/5, so this should be, just make me the correction. अगर ये 1/5 है, so this will be 1/5. This will be 48x. So this will be, new family income will be 108x, right?
आई थिंक यस दिस वाज द करेक्ट क्वेश्चन. सो आपको फाइंड क्या करना है ना, what percentage of his family's total income is his new salary? So you have to basically do 48 by 108. 48 by 108. 48 by 108 is 12 by 27, that is 4 by 9. 4 by 9 is 44.44%. So C is your correct answer. C is your correct answer in this case. Understood? Now let's go to the next question. Quickly solve this question. Take 60 seconds for each question. है ना. और ये क्वेश्चन एक ऐसा था जहां पे काफी लोगों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, एंड ऑन द सेम टाइम a lot of people found it to be on the easier side. Let's see what the question says. क्या बोल रहा है? A bag contains a total of 108 candies of 3 types. If the probability of picking a chocolate candy is 1 by 3. So अगर probability of a chocolate candy is क्या है? 1 by 3. चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड वेनिला. तो 108 कैंडीज में अगर 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉकलेट कैंडी, तो चॉकलेट कैंडीज कितनी हो जाएंगी? 36. दैट इज 1/108 का 1/3. द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग स्ट्रॉबेरी कैंडी इज 4/9. तो स्ट्रॉबेरीज कितनी हो जाएंगी मेरे पास? 108 इंटू 4/9, दैट इज 1 2. तो ये 48 हो जाएगा, है ना. और बाकी बची हुई कौन हो जाएगा? वेनिला कैंडीज, है ना. बाकी बची हुई कौन हो जाएगी मेरी? वेनिला कैंडीज, दैट इज 24. सो आपसे क्या पूछा? देन हाउ मेनी कैंडीज आर ऑफ वेनिला टाइप? सिंपल आंसर, 24 इज द करेक्ट आंसर, है ना. बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको कुछ करना ही नहीं था, है ना. देयर इज वन अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपको पता है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ पिकिंग चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड वेनिला इज 1. तो अगर चॉकलेट की है प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी 4/9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 माइनस 1/3 माइनस 4/9, दैट इज 2/3 माइनस 4/9, है ना. एंड दैट इज 2/9, राइट. तो वेनिला की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ गई? 2/9. सो 2/9 इंटू 108, दैट इज 24 इज योर करेक्ट आंसर, है ना. 24 इज योर करेक्ट आंसर. यू कुड हैव डन दिस क्वेश्चन इन दिस वे ऑल्सो, बट कोई भी वे में करोगे. आई डोंट थिंक दिस वाज ऑन द डिफिकल्ट साइड, बट आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग और वाज कंफ्यूज्ड फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, I think this is again a question of I would say typical CAT question, right? जहाँ पे आपको LCM HCF का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है. So let's solve this question. क्या बोल रहा है? Find the least number of square tiles required to pave the floor of a room of 30 meter 34 centimeter long and 18 meter 4 centimeter abroad, right? So first thing we can see, राइट, हमें क्या करना है? पहली बात तो देखो स्क्वायर टाइल्स है. स्क्वायर टाइल्स का मतलब क्या होता है? उनका लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहेगा, और हमें लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स फाइंड करनी है. फर्स्ट लेट्स कन्वर्ट ऑल दिस थिंग इनटू द सेंटीमीटर ओनली, सो एक यूनिट में रहे. सो 30 मीटर इज 3000 सेंटीमीटर, तो 3034 सेंटीमीटर इंटू 1804, ये साइज का मेरे पास रूम है, राइट. सो व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू पेव द इंटायर फ्लोर, है ना, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर टाइल्स, और मुझे स्क्वायर टाइल्स का मिनिमम नंबर फाइंड करना है. सो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में हाउ वी प्रोसीड, वी फर्स्ट टेक द HCF ऑफ दीज नंबर्स, और जो भी मेरा HCF आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हम जो स्क्वायर टाइल है उसका साइज ले लेंगे, है ना. उसको हम स्क्वायर टाइल का साइज ले लेंगे, राइट. सो अगेन एग्जाम में थोड़ा सा इट कुड हैव बीन चैलेंजिंग टू फाइंड द HCF ऑफ दिस. देयर आर मल्टीपल वेज, बट बहुत जो बेसिक वेज है उसको भी हम देख सकते हैं कि कैसे होगा. सो इफ यू ब्रेक डाउन दिस नंबर 3034, right, I am just doing it for you right now. So this is 41 into 2 into 37, right, and 1804 का क्या होता है? It is 41 into 2 का स्क्वायर into 11, right. So मेरा यहाँ से अगर आप HCF देखोगे, HCF is 41 into 2, that is 82 is my HCF, right. 82 is my HCF. So basically आपको पता लग गया कि आपका जो टाइल है उसका साइज क्या होगा? 82 into 82, because it's a square size टाइल, राइट, स्क्वायर शेप टाइल. तो आपका रूम का साइज ये है और टाइल का साइज ये है. सो यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, that is 3034 into 1804 is the total area, and the area covered by one tile is 82 into 82, right. So 82
3034 से 37, and this will be 22, right? So 37 into 22, that is 814. 37 into 22 is 814. 814 should be your right answer. Understood? Typical, I would say, surface area question wrote from the cat. Now let's solve this question. 15th question में देखो क्या कहा है हमें, है ना? इन द गिवन सीरीज 6, 13, 20 विच टर्म इज 636. पहले तो सीरीज देख लेते हैं. नॉर्मल एपी सीरीज है एंड आई वुड से काफी सिटर क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ करना नहीं है. फर्स्ट टर्म आपको पता है 6 है, कॉमन डिफरेंस 13 है. सो आई कैन से जो एक tn होगा, tn इसका क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636, राइट? सो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 630 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 90. तो n की वैल्यू 91 आ जाएगी. n की वैल्यू 91 आ जाएगी. सो 91 इज योर आंसर. 91 is your answer for this question. Understood? Now let's move to the next question. क्या बोल रहा है? A shopkeeper buys 100 each of the books, erasers and pens at 1800, 150, 425 respectively. Right? So 100 units दी है आपको एंड उसका प्राइस भी दिया हुआ है. सो यू कैन से बुक्स, इरेजर, पेन का जो मेरा एक सिंगल का कॉस्ट प्राइस है, तो 100 बुक्स एट 1800. सो 18 इज द कॉस्ट प्राइस फॉर वन बुक. 150 for 100 erasers, so 1.5 is the cost price for one eraser, and 425 pens at 425 pens, है ना? 100 pens at 425, so 4.25 is the cost price of one single pen. He sells books, erasers and pens for 360, 30 and 65 a dozen. So आपको सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा. 12 यूनिट्स का सेलिंग प्राइस आपको 360 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का 30 आ जाएगा. यहाँ पे 30/12 इज 5/2, that is 2.5 is the selling price for eraser, and 65/12, let it be the same for the moment, or maybe we can do 5 plus 5/12. Okay, 5/12, right? 1/12 is 8.33, so let it be like this only, 5 plus 5/12. पूछा क्या पहले वो देखते हैं. ऑन विच टू आइटम्स ही अर्न द सेम प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं, यहाँ पे कितना प्रॉफिट परसेंट आ रहा है? 12 का प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18, सो 12/18, दैट इज 12/18 इज 2/3, दैट इज 200/3, दैट इज 66.66% प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है. यहाँ पे कितना आ रहा है? 1.5, सॉरी 1/1.5, 1/1.5, दैट इज 2/3 अगेन आ रहा है. सो यहाँ पे भी 66.66% आ रहा है. सो यू कैन डायरेक्टली सी, है ना, बुक्स एंड इरेजर का आ रहा है, राइट? बुक्स एंड इरेजर का आ रहा है, बट देयर इज ऑल्सो वन ऑप्शन जहाँ पे ऑल आर 3, राइट? ऑल आर देयर और ऑल 3 आर देयर. सो यहाँ पे हमें इसका भी चेक करना पड़ेगा. सो इसका मेरा कितना आएगा? लेट्स डू सम अप्रोक्सीमेशन. सो 8.33 into 5 should be 42 something. So let's say 5.42 maybe. 5.42. और व्हाट वी कैन डू इज दैट, हमें पता है यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट आया, 2/3 का, यहाँ पे भी 2/3 का. सो यहाँ पे देख लेते हैं इसका 2/3 इंक्रीमेंट क्या होगा. तो 4.25 इंटू 2/3, राइट? दैट इज 8.5/3. सो 8.5/3 इज 2.8 समथिंग. तो अगर मैं यहाँ पे 2.8 समथिंग करूंगा, दिस शुड हैव बीन 6 पॉइंट समथिंग, बट यहाँ पे तो 5.42 समथिंग आया. दैट मीन्स यहाँ पे 2/3 का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा. सो माय करेक्ट आंसर शुड बी बुक्स एंड इरेजर ओनली, है ना? माय करेक्ट आंसर शुड बी बुक्स एंड इरेजर ओनली. ठीक है. नाउ लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन. there are 7 boys and 8 girls in a class. A teacher has 3 items, that is a pen, pencil and an eraser, each 5 in number. Okay, he distributes the items 1 to each student. What is the probability that a boy selected at random has either a pencil or eraser? ये थोड़ा सा confusing question था, है ना? So let's try to break this question into parts and then solve. So there are 7 boys and 8 girls. 7 boys and 8 girls. A teacher has 3 items,
pen, pencil and eraser, each 5 in number. 5 pens are there, 5 pencils are there, 5 erasers are there. So आपको थोड़ा सा ये तो पता लग रहा है 15 and 15 है ना, 5 पेन्स 5 पेंसिल, 15 लोग हैं और 15 मेरे पास स्टेशनरी आइटम्स हैं. सो ही डिस्ट्रीब्यूट्स द आइटम 1 to each स्टूडेंट. फाइन, एक एक सबको दी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ईदर ए पेंसिल और एन इरेजर. या तो उसके पास पेंसिल होनी चाहिए या फिर इरेजर, राइट. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उसके पास पेन नहीं होना चाहिए, है ना, उसके पास पेन नहीं होना चाहिए. अंडरस्टूड. देखो इसमें बेसिकली तुम्हें यही देखना है कि उसके पास पेन, पेंसिल हो, इरेजर हो चलेगा, बट पेन नहीं होना चाहिए, है ना. देयर शुड नॉट हैव बीन एनी पेन, राइट. और उसने क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ईदर ए पेंसिल और एन इरेजर. अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है. मे बी इफ आई वुड गो विद दिस क्वेश्चन आई वुड सी इट एज दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय सिलेक्टेड एट रैंडम हैज ईदर ए पेंसिल और इरेजर. बॉय इज सिलेक्टेड ऑलरेडी एंड नाउ वी हैव टू फाइंड कि उसके पास पेंसिल है या इरेजर है, राइट. अब बॉय का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है ना. दैट इज सॉर्ट ऑफ ए आई वुड से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम टाइप होता है, जहां पे नॉट बेस थ्योरम एग्जैक्टली बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जहां पे एक इवेंट ऑलरेडी हैपन हो चुका है, उसके बाद आपको नेक्स्ट इवेंट फाइंड करना है. तो बॉय आपका ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है. देन उसके पास पेंसिल और इरेजर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. देखो या तो उसके पास पेन हो सकता है, या पेंसिल हो सकती है, या फिर इरेजर हो सकती है. अब इन दोनों में से कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. वी हैव 3 ऑप्शंस एंड आउट ऑफ दीज 2 आर फेवरेबल ऑप्शंस, सो 2/3 शुड बी द आंसर. 2/3 शुड बी द आंसर. एक तो ये केस बन सकता है, राइट. सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है ना, बिकॉज दीज आर जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट लैंग्वेज या जो भी है. ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले बॉय को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी देखो. तो बॉय को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/15, और उसके बाद फेवरेबल इवेंट जो आपका है ना 2/3, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, राइट. सो दैट इज 14/45. सो ऐसा भी कुछ 14/45 कुड हैव बीन द राइट आंसर ऑल्सो. सो इसके दोनों वेज है. आई डोंट नो, आई थिंक 14/45 शुड बी द राइट आंसर, बट लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. सो एग्जैक्ट लैंग्वेज आई एम नॉट वेरी श्योर कि एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी. मे बी यू कैन कंफर्म इन द चैट बॉक्स कि आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या था क्वेश्चन में, एंड डिपेंड्स ऑन दैट either 2/3 or 14/45 is the answer. The sad part about the snap is कि we don't get any information regarding the correct answer, regarding the response sheet, regarding the answer key. So it doesn't matter at all, to be very honest, but just be aware of the fact that there can be word play in the next slot also. So थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी का, परम्यूटेशन का क्वेश्चन थोड़ा सिंपल ही रहता है. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन 18th, है ना. ये थोड़ा सा क्वेश्चन काफी लोगों के लिए जिनको इतना अच्छा नॉलेज नहीं है ना, मे बी उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट अगेन इट इज नॉट नेसेसरी टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम, राइट. सो यू कैन लीव दिस क्वेश्चंस, बट आई वुड से एटलीस्ट गिव इट अ रीड एंड देन डिसाइड, राइट. रैंडमली डोंट डिसाइड बेस्ड ऑन द टॉपिक और बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन. सो क्या बोला हुआ है, एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन हैज ए रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर. सो राइट सर्कुलर कोन, बट द कोन इज इन्वर्टेड, right, so that is upside down. So this is how the cone should look like. This is inverted right circular cone, and the radius of the cone, this length is 12 centimeter. This cone is partly filled with the oil which is dipping from a hole in the tip at the rate of 2 centimeter cube per hour. So this is partly filled with the oil. Currently the level of oil is 5 centimeter from the top. So जो मेरा oil है वो let's say यहाँ तक fill है ना, दिस इज द ऑयल. तो ये लेंथ, जो मेरी ये लेंथ है, वो ये लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप. एंड सरफेस एरिया इज 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. एंड सरफेस एरिया इज 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सरफेस एरिया कौन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना. सो पाई आर स्क्वायर इज 64 पाई. सो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 इज द वैल्यू ऑफ आर, राइट. रेडियस मुझे पता लग गया 8. हाउ लॉन्ग इट विल टेक द कोन टू बी कंप्लीटली एम्प्टी, है ना. और आपको देखो ये रेडियस पता लग गई 8, राइट. ये इसका सरफेस एरिया का बात किया हुआ है, राइट. सो पाई आर स्क्वायर, दिस इज 8, दिस इज 5, दिस इज 12, राइट. नाउ आपको ये भी पता है कि कितने, क्या रेट है ना, क्या एम्प्टी होने का क्या रेट है, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर, बट यू डोंट नो दिस डिस्टेंस.
और ये डिस्टेंस हमें क्यों रिक्वायर्ड है, बिकॉज अगर हमें ये डिस्टेंस पता लग गई, वी ऑलरेडी नो द रेडियस, सो वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑयल, है ना, वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कंप्लीट ऑयल। सो आप क्या कर सकते हो, देखो आपका ये सॉर्ट ऑफ एक ट्राइंगल बनता है, राइट, ठीक है, एंड दीज आर द, जो आपका ये ट्राइंगल है, अ, ये वाला ट्राइंगल और एक ये बिगर ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, है ना, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पे आप सिमिलैरिटी का रूल लगा सकते हो, राइट, यू कैन यूज द रूल ऑफ सिमिलैरिटी। कैसे लगाओगे, बिगर ट्राइंगल की रेडियस 12 डिवाइडेड बाय स्मॉलर ट्राइंगल की रेडियस 8, बिगर ट्राइंगल की हाइट क्या हो गई, लेट्स द वैल्यू ऑफ दिस इज x, दिस इज 5, सो दिस इज 5 प्लस x डिवाइडेड बाय स्मॉलर ट्राइंगल की हाइट दैट इज x, so I can say 12x is equal to 40 plus 8x, that is 4x is equal to 10, नहीं, 4x is equal to 40 and x की वैल्यू 10 आ गई, राइट, सो दिस हाइट इज 10, सो आपको पता लग गया यहाँ पे दिस इज 8 एंड दिस इज 10, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका कैसे आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट, वॉल्यूम ऑफ द कोन, दिस इज द स्मॉलर कोन, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट, एंड आपका ड्रिपिंग का रेट क्या है, 2 सेंटीमीटर पर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू द कोन टू बी कंप्लीटली एम्प्टी, राइट, टू बी कंप्लीटली एम्प्टी, राइट, सो ये मेरी टोटल वॉल्यूम है एंड द रेट इज 2 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर, सो यू कैन डिवाइड द टोटल वॉल्यूम बाय द रेट दैट इज 2, so this is 32, so 320 pi by 3 hours it should take to get the cone completely empty, so 320 pi by 3 hours, that is C option should be there. Now let's move to the next question. This was one of the question जहां पे आपका बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था during the snap, right, so basically यहाँ पे क्या था, from 569 to 1024, right, you have to find the sum of all the numbers that are either divisible by 3 or by 7. So यहाँ पे there is only one way, that is you have to first find the numbers that are divisible by 3, then you have to find the numbers that are divisible by 7, then you have to take the case which are double counted, that is the numbers which are multiple of 21. So यहाँ पे इंडिविजुअली आपको काफी कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, बेसिकली यहाँ पे एक एपी बनती, यहाँ पे एक एपी बनती, देन यहाँ पे एक एपी बनती, वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। आई थिंक दिस क्वेश्चन वाज टाइम कंज्यूमिंग वन एंड आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर सच क्वेश्चंस इन द एग्जाम, है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं था, आई ट्राई टू सॉल्व इट इन द मल्टीपल वेज बट आई डिड नॉट फाइंड एनी शॉर्टकट, so I would suggest you to please avoid such questions and focus on the other questions, है ना, which are of very good quality or which are completely sitter. So we are ignoring this question for the moment. Let's go for this. Why this is an empty space, let's see. I think we missed one question related to the diagonals, so I think that should be the 20th question. Let me see what is the question. Diagonal से एक related question था ना, वो भी easy था I think. Let me find the question. How many diagonals are there in a polygon having 14 edges, right? How many diagonals are there in a polygon with 14 edges? So आपको ये फाइंड करना है कि if there are 14 edges, how many diagonals will be there? So basically ये एक बिल्कुल सिटर क्वेश्चन था, है ना, you don't have to do anything, you know the number of diagonals. Number of diagonals का फॉर्मूला क्या होता है? Number of diagonals is n into n minus 3 by 2. So आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 14 into 11 by 2, that is 66. So 66, sorry, 14 into 11 by 2, so 77, my bad. So 77 is the right answer for this question. You don't have to do anything, right? I hope you like the session, right? And we covered all the 20 questions, and these are the exact questions that appeared in the Snap Slot 1 Shift 1. If you like the video, please share it with your friends. If you want more videos of similar nature or related to the other exams, please comment under this video and like the video. Let's first review all the questions that are here and discuss some strategy, है ना, कि एग्जाम में आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए थे, कौन से राउंड में. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो, दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे अगर आपको ये चीज पता है, देन इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू, because total minus none of Croatia, then you have to just do 9c3 minus 6c3, but depending on your comfortability area, but I would suggest कि permutation and combination में थोड़ा सा अगर knowledge है, otherwise आप क्या कर सकते थे, you have to select the team of 3 players, you can make the cases कि एटलीस्ट वन है तो 1% फ्रॉम क्रोशिया, 2% फ्रॉम क्रोशिया, 3% फ्रॉम क्रोशिया, वहां से भी आप कर सकते थे, बट आई थिंक इन द अदर केस इट कुड हैव टेकन मोर टाइम. So to save the time and to go with the right method, I think this is the right way for such questions. You should have attempted this question, but if you don't have no right knowledge for this question, I think you could skip this question in the exam. Right. In the second, I think this was complete sitter, because we know that the x plus 1 by x का जो minimum value होता है वो 2 होता है if x is positive, and if x is negative, right, the maximum value is -2. Right, this we already know. So x plus 1 by x is -2, so ये काफी जल्दी आपको स्ट्राइक होना चाहिए था कि x की वैल्यू -1 आएगी. Third question, it is just a sitter question or a very basic question of time and work. There is nothing to discuss about this question. I think everyone should solve this question for sure. And this question might be confusing. There is nothing to be confused in this question, but maybe some students who are not good at permutation and combination might feel it difficult. But I would say that have a very decent idea about the PNC, because the level of PNC is very basic in the exams like SNAP. So you should know some things around the PNC, and these questions can help you a lot in scoring very good marks. Fifth question might be a time taking for some students, but I think again, in terms of difficulty level, it was pretty straightforward question. But हाँ, थोड़ा सा time यहाँ पे लग सकता था in the calculation. The students who are not good with the questions involving the calculations might find or might have a tough time in this question. ये क्वेश्चन काफी सीटर था. आई थिंक नोबडी शुड लीव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड ज्यादा से ज्यादा अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, यू कैन गो विद द ऑप्शंस. सो ए बी सी आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो इफ दिस इज 1/100. राइट, अगर आपको कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा, देन ऑब्वियसली नन ऑफ दिस कैन बी द आंसर. Right, this question is a tricky one, or I would say this question involves some prior understanding of the circles, or you don't need to worry about such questions. एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे आते भी हैं, you can completely leave these questions. This question, this is a complete basic question. अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे exact roots find करने लग गया, then you would have tough time, but otherwise I think A, C, D options were very easy to eliminate, so the only option left is B, and you should go with the B. Ninth वाला, I think this is a new type question, है ना, and you should have some understanding कि कुकू कितने बार sound करता है and how the clock works. So if you don't have much understanding about this question, I think it's okay to leave such questions. This question again involves some basic understanding of the stroke. So I think if you don't have understanding, you can leave this question, but if you have applied for slot 2 and slot 3, so you should definitely go through the stroke concept once. This question was pretty straightforward, right? And I think this is the only way, or this is the best way to go for this type of questions. It will save a lot of your time. This question was again straightforward, right? And this question was pretty straightforward, but someone who has not practiced probability or who fears the probability might think that this is the question from the probability, but this was a pretty straightforward question based on the sum of candies. Right, find the least number of square tiles. Again, if you have not practiced surface area questions, then it might require a lot of thinking, but otherwise I think the only tough part in this question was to calculate the HCF of 3034 and 1804. Otherwise there was nothing in this question. But yeah, there was a lot of calculation involved. But yeah, in the question like this, which is a very typical or straightforward question, or the I would say sitter, तो वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है. तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सजेस्ट कि अटेम्प्ट क्वांट्स एंड एलआर इन 2 parts. In the first part, attempt the question which are sitter and which can be solved within few seconds, and in the next part, attempt the question which are doable but can take some time. This question was very simple. I think everyone must attempt these type of questions in the exam. This question was again simple, nothing to do, right? And I think pretty straightforward also, right? Not a lot of calculation was involved either. This question, I think this was a confusing one, or maybe we don't have exact lines that was mentioned there in the exam. But yeah, 2/3 or 14/45, either of one should be the answer.
An inverted right cone, again, this was the question, which is again a very basic question of the mensuration. So if you have covered the mensuration well, I think you already know how to go with these type of questions. Otherwise, you can leave such questions. uh, this question is definitely the one which you should avoid in the exam, है ना? There is no way, there is no thinking, there is no strategy to go for these questions. The only best strategy is to, whenever you see this type of questions, leave the question as soon as possible. How many diagonals are there in a polygon with 14 edges? I think this is the one question which you must go for. And that's why I keep repeating that instead of practicing a lot of questions, first make sure that you know each and every formula that are there in the CAT syllabus. And there is no separate syllabus for snap. Just have a good understanding. I don't want to have extensive understanding. I don't want you to learn a lot of things regarding the circles, regarding the geometry, regarding the number system. But there can be cases where a direct question can be asked from these topics. So a little understanding about the formulas and about how the things should be proceeded with the questions, I think that will help you a lot in the snap exam. This slot is said, the quant specifically for this slot is said to be on the difficult side, but I would say again, if you are well prepared, 10-12 marks from the quants would not have been challenging task, right? That's it from my side. If you like the video, please like and share, and do let me know in the comments. Thank you. And also join our Telegram group, the link is in description.